all doing? Okay, so this is our channel link, so you can also see it on the PPTs. Yeah, this is our channel, that is the Brainipedia. Okay, you can also see the number of the channel. So guys, please like, share and subscribe. And also if you want to buy this course, you can contact on this number. Okay, so let's not waste the time. चलो start करते हैं. Okay, so today we are starting with the connective tissue. Okay, so yeah, so this is the connective tissue. Okay, so guys, what we have studied earlier, we have discussed that there are four types of tissues that are present in animals. Okay, so they are present only in animals. Okay, not in plants. The plant tissues, they are different, they are like permanent meristematic. Okay, that you will study in botany. Okay, so here we are only discussing about the animal tissues. Okay, so the first one is the epithelial tissue, second one is the connective tissue, and third one is the muscular, and fourth one is the nervous tissue. Okay, so there are the four type of animal tissues. Okay, so now we are on the second tissue. Okay, that is the connective tissue. So just give me 1 second. Just 1 second. So yeah, we are discussing about connective tissue. Okay, so connective tissue, they are the most abundant. They are the most abundant and widely distributed tissues that are found in the body of the complex animals. Okay, so if I talk about first their origin. Okay, connective tissue origin. They are originated from connective tissue. They are originated from mesoderm. Okay, connective tissue, they are originated from mesoderm. Okay, so they are the most abundant and widely distributed tissue that are found in the animal's body. Okay, so just give me 1 second. I just need a clear page. That's it. Mhm. Yeah, here I am going to describe the diagram of the whole connective tissue. Okay, so if we talk about the connective tissue, we are discussing about the connective tissue. Okay, so their origin, we have already discussed their origin. They originated from mesoderm. Okay, so हमने क्या पढ़ा था कि सेल्स में क्या होती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं. बट अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इनके सेल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के सेल दे आर फॉर फ्रॉम ईच अदर. ओके, so suppose this is a cell, any kind of cell that we will discuss later, but just remember this is a cell, also a cell, another type of cell. Okay, और they all are cell. Okay, so अब इन सेल में क्या है, they are at a far, है ना, they are far ना. So इनके बीच में क्या होगा, हमने पढ़ा कि कनेक्टिव टिश्यू का अगर हम बात करें तो इनके पास क्या होता है, दे हैव सेल्स, दे हैव प्रोटीन फिब्रिल्स एंड दे हैव ए ग्राउंड सब्सटेंस. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, एक ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होगा. ओके, ये जो सेल्स है दूर दूर है, तो इनको कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू का काम ही क्या है, इनको कनेक्ट करना. ये कनेक्शन किसके थ्रू हो रहा है, एक ग्राउंड सब्सटेंस जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा. ओके, हियर इट इज व्हाट प्रेजेंट, ground substance. Okay, so this ground substance is present in the connective tissue that is going to join or link these cells. Okay, so I just need, yeah, this is the fibers. Okay, आगे मैं बताऊंगी कौन सा फाइबर है. ठीक है, अभी के लिए बस इतना याद रख लो. ठीक है,
डन, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये सेल जो है इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट है। और ये जो ग्राउंड सब्सटेंस जो है इसका नाम क्या है, दैट इज द मैट्रिक्स। ग्राउंड सब्सटेंस क्या है, ये एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बना है, दैट इज द, क्या बोला है इसको, मैट्रिक्स। ओके, दिस इज अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में क्या पढ़ा, दे आर द मोस्ट अबंडेंट एंड दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला गया है, कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोला गया है क्योंकि ये क्या करिए, सेल को एक दूसरे के साथ लिंक करने का काम करे, इनको ज्वाइन करने का काम करे। ठीक है, अगर हम इस ग्राउंड सब्सटेंस की बात करें, ये क्या है, या तो ये फ्लूइड होगा, या तो सेमी फ्लूइड होगा, या तो जेल लाइक सब्सटेंस होगा। ठीक है, जो क्या, जिसके बीच में सेल्स जो होंगे वो क्या होंगे, एम्बेडेड होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। चलो यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं अब। ओके, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला है, दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग। ओके, ये लिंक करते हैं और सपोर्ट करते हैं अदर टिश्यू ऑर्गन्स को बॉडी के। ठीक है, अब ये रेंज करते हैं सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू को। अब बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, लाइक वी हैव दी cartilage, we have tendons that connect bone to muscles. Okay, so we have ligaments that connect bone to bone. Okay, so we have bone that provide a complete structural framework to the body, and we have the fluid connective tissue that is the blood. Clear हो गया, क्या पढ़ा हमने, कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बॉडी में जितना सब कुछ है, दे ऑल आर मेड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में हम क्या बोल रहे थे, द मोस्ट अबंडेंट। इवन ब्लड इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या करता है, एक फ्लूइड है, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू। ये इसका काम क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को और ग्लूकोज को। ठीक है, कार्टिलेज इट्स ऑल्सो ए कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू में, दे इनमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं दे आर हाईली वेस्कुलर। अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू में, दे आर हाईली वेस्कुलर एक्सेप्ट cartilage. Cartilage is avascular. Okay, so if we talk about, okay, so they are the highly vascular tissues, but the cartilage is the only avascular. Okay, and tendons they have scanty of blood supply. Okay, blood supply जो टेंडन में होती है वो स्कैंटी होती है। ठीक है, ज्यादा नहीं होती, इसलिए अगर इनमें कोई इंजरी हो जाए तो दे हील वेरी स्लोली। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलो यहाँ पे क्या है, in all connective tissue except blood, the cells secrete fibers of structure protein called collagen और elastins. जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं ये सारे क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स का जो फ्लूइड है वो बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स हो गए, इलास्टिन फाइबर हो गए, ये सारे क्या करते हैं, ये सेल्स बनाते हैं। एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड जो है ये कोई भी फाइबर्स जो है वो नहीं बनाता है। ठीक है, अब ये जो फाइबर्स है ये क्या करते हैं। ओके, सो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इस डायग्राम में क्या है। ओके, दिस इज द कोलेजन फाइबर। अगर हम बात करें कोलेजन फाइबर की, कोलेजन फाइबर इज द मोस्ट अबंडेंट, ओके, मोस्ट अबंडेंट दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ओके, collagen fiber that is made up of the collagen protein, and this is the they are always present in bundles. Okay, and they are unbranched. collagen fibers जो होते हैं they are made up of the collagen protein and they are unbranched. यहाँ पे कोई ब्रांच हमें नहीं दिख रही ना, they are unbranched and they are always present in bundles. Okay, so this is the elastic fibers. Okay, इलास्टिक फाइबर की अगर हम बात करें, इलास्टिक फाइबर क्या होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ द इलास्टिन प्रोटीन। दे आर मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन एंड दे आर ब्रांच्ड। ओके, एंड ये बंडल की फॉर्म में नहीं है, दे आर प्रेजेंट सिंगली। ओके, सिंगल प्रेजेंट है ना, ये वाले जो है दे इलास्टिक फाइबर है, दे आर मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन, ब्रांच्ड और क्या है, सिंगल। वन सेकेंड। ओके, सो अनदर टाइप ऑफ जो एक फाइबर प्रेजेंट होता है दैट इज द रेटिकुलर फाइबर, जो क्या प्रोवाइड करता है, जो एक मैश वर्क प्रोवाइड करता है, दैट इज मेड अप ऑफ रेटिकुलिन प्रोटीन, और वो एक क्या करता है, मैश वर्क, इनको नेटवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, रेटिकुलर इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, बट आप इससे याद रख लो, रेटिकुलर
फाइबर। रेटिकुलर फाइबर जो है ये किससे बना है? रेटिकुलिन प्रोटीन से। रेटिक्यूलिन प्रोटीन से बना है और ये एक मैश वर्क प्रोवाइड करता है, एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, दैट इज क्लियर। चले, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर हम सेल्स की, चलो ठीक है, अगर हम यहाँ पे सेल्स की बात भी कर लेते हैं, जो सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है इन कनेक्टिव टिश्यू में, दिस इज द फिब्रोब्लास्ट सेल। Fibroblast cell, they are the largest cells and they are present in, they are more in number in connective tissue, they are more in number. Okay, so plasma cell, चलो plasma करते हैं, plasma cell. Okay, so it is the mast cell and this one is the okay, this is the macrophage, and this is the mast cell. Okay, mast cell. Okay, हम इन सेल्स के बारे में आगे देखते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया कि कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, हमने अभी तक क्या पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू, एक बार हम देख लें। ठीक है, ओके, कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या पढ़ा, पहले हमने इनके ओरिजिन की बात की, दैट इज फ्रॉम मेसोडर्म। ओके, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? क्योंकि ये लिंक करते हैं, ज्वाइन करते हैं और सपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी के टिश्यूज को या फिर ऑर्गन्स को। क्लियर? ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू में अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट डिफरेंट मतलब जो भी कनेक्टिव टिश्यू है, अगर हम बात करें कनेक्शन में कौन हेल्प कर रहा है, दैट इज दी लिगामेंट, जो बोन टू बोन हेल्प कर रही है। ठीक है, टेंडन जो बोन को मसल्स के साथ कनेक्शन में हेल्प दे रही है। ठीक है, बोन बोन जो हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बना रही है। ठीक है, और ब्लड जो क्या कर रहा है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन का और ग्लूकोज का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं, हमने कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर देख लिया, एक हमने उसमें सेल्स पढ़ लिया, दैट इज द फिब्रोब्लास्ट जो लार्जेस्ट सेल है और क्या है, मोस्ट अबंडेंट है। यहाँ पे ये सबसे ज्यादा यही प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हमने क्या बात की है, ग्राउंड सब्सटेंस की, जिसको हमने क्या बोला है, मैट्रिक्स, वो प्रेजेंट है। प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट है, दैट इज द कोलाजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे सेल्स की, तो प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो इम्यूनिटी में काम करेंगे, मैक्रोफेजेस हैं और मैस्ट सेल हैं। इन सब के बारे में हम आगे देखेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी के लिए यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं इनको थोड़ा याद रख लें, जैसे कोलाजन फाइबर्स जो हैं, दे आर मेड अप ऑफ दी कोलाजन प्रोटीन से बने हैं। ठीक है, ये अनब्रांच्ड है। ठीक है, ये जैसे ये है ना, ये ऐसे ब्रांचिंग के फॉर्म में है, ऐसे यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है ना, तो दे आर अनब्रांच्ड। और कोलाजन फाइबर्स होता है, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन बंडल्स। ठीक है, ये हमेशा बंडल में प्रेजेंट होता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और रेटिकुलर फाइबर, इट इज मेड अप ऑफ रेटिकुलर प्रोटीन, और ये क्या होता है, मैश वर्क प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने, इलास्टिक फाइबर, दैट इज मेड अप ऑफ द इलास्टिन प्रोटीन। ये क्या होते हैं, इलास्टिसिटी होती है ना, कि जो मतलब एक बार तुम किसी को खींचते हो तो वो डेफिनेटली अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाता है, दिस दे हैव दैट प्रॉपर्टी। ओके, इलास्टिक, दैट इज दी, दे आर मेड अप ऑफ द इलास्टिन प्रोटीन, ब्रांच्ड है और सिंगल है। ठीक है, ओके, सो हमने क्या बात की थी, कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, कनेक्टिव टिश्यू में सिर्फ ब्लड है जो कोई फाइबर सिक्रीट नहीं करता, बाकी जितने भी सेल्स हैं दे ऑल सिक्रीट फाइबर्स। ओके, दैट इज कोलाजन, इलास्टिन हो गया, रेटिकुलर हो गया। ठीक है, ये फाइबर है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टिश्यूज को, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, ये जो सेल जो है ये दे सिक्रेटेड मॉडिफाइड, हाँ, हमने क्या पढ़ा था कि जो वो मैट्रिक्स है, दैट इज ग्राउंड सब्सटेंस, इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, ये उससे बनी होती है। अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू को क्या किया गया है, कनेक्टिव टिश्यू को क्लासिफाई किया गया है इनटू 3 टाइप्स में। फर्स्ट वन इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड वन इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड वन इज द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू को, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड कनेक्टिव टिश्यू दैट इज स्पेशलाइज्ड। ओके, सो जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है उसमें दो आगे, दैट इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और जो स्पेशलाइज्ड जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें दो आगे, दैट इज द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे गाइस, अगर आप लोगों ने ये इसको नोट कर लिया तो मैं इसको, इस पेज को इरेज करके दूसरा पेज ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, सो
चलो मैं इसको अगली वाली क्लास में डिस्कस करते हैं, यहाँ तक अभी यही रखते हैं, ठीक है। दैट इज क्लियर। अगर कोई भी डाउट होगा गाइस तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे देना, ठीक है, मैं देख लूंगी। चलो गाइस, थैंक यू एंड स्टडी हार्ड।